Hello friends, today we discuss hydrocephalus, which is the most commonly appear in neurosurgery practice for the child and early going age, and most common cause of surgery, brain surgery for children. This is the picture in your screen. As you know, this is the picture of Amitabh Bachchan in PA, and ये पिक्चर यहाँ लगाने का एक मकसद है। मकसद ये है कि इस पिक्चर में अमिताभ बच्चन का सिर जो है वो बड़ा है, बिग हेड, एंड आवर टॉपिक इज आल्सो द टुडे इज हाइड्रोसेफेलस। एंड हाइड्रोसेफेलस में जो बच्चे होते हैं उनका सिर बड़ा हो जाता है। एंड मीनिंग ऑफ हाइड्रोसेफेलस इज, हाइड्रो मीन्स वाटर, दिस इज द ग्रीक वर्ड हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, and cephalus means head. That means hydrocephalus is water in the brain, सिर के अंदर पानी का होना. This is known as hydrocephalus. But this is not a clear definition because हमारे दिमाग के अंदर, नॉर्मल दिमाग के अंदर भी पानी होता है, and this is known as CSF, cerebrospinal fluid. This is known as cerebrospinal fluid, जो कि नॉर्मली हर ब्रेन के अंदर होता है. तो हाइड्रोसेफेलस क्या हुआ? हाइड्रोसेफेलस मीन्स एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन ब्रेन. दिमाग के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाना, इतनी ज्यादा हो जाना कि वो पैथोलॉजिकली हार्मफुल हो जाए, दैट इज हाइड्रोसेफेलस. Definition of hydrocephalus is, hydrocephalus is a condition caused by imbalance, very important, imbalance in the production, number one, production and absorption. CSF ब्रेन में बनता है, प्रोड्यूस होता है, एंड अगेन एब्जॉर्ब हो जाता है. when there is a imbalance between production and absorption, imbalance होगा, accumulation होगा, that this is accumulated CSF in the ventricle. Imbalance in production and absorption of CSF in the ventricle. When production exceed, either या तो प्रोडक्शन बढ़ जाए और एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, दोनों चीजों में CSF एक्यूमुलेट होगा. यूजुअली अंडर प्रेशर बढ़ेगा, प्रोड्यूसिंग डायलेटेशन ऑफ वेंट्रिकल. जब ICP बढ़ेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कोजिंग डायलेटेशन ऑफ वेंट्रिकल. जब वेंट्रिकल डायलेट होंगे तो CSF एक्यूमुलेट होगा इंट्रावेंट्रिकुलर. देन हाइड्रोसेफेलस इज बिल्ड इनसाइड द स्कल लीडिंग टू ब्रेन स्वेलिंग. देन ब्रेन में एडेमा, ब्रेन में सूजन बढ़ेगी. जब वेंट्रिकल के अंदर CSF ज्यादा हो जाएगा पैथोलॉजिकली तो ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ेगी. Incidence, what are the incidence of hydrocephalus? As previously discussed, this is the most common. Incidence of primary hydrocephalus without spina bifida is approximately 2500 live births, making it one of the most common developmental disability. This is the most common developmental disability which is appear in the child related to brain. More common than Down syndrome, deafness. It is the leading cause of surgery. As we discussed, this is the leading cause of brain surgery for children. This is the most common or leading cause of surgery in children. ये एक ऐसी पैथोलॉजिकल एंटिटी है जो बच्चे में सबसे ज्यादा सर्जरी के लिए, जिसे बोलते हैं सर्जरी की जाती है. देन वी आर गोइंग फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन ब्रेन. दिस इज द ह्यूमन ब्रेन. दिस इज अपोजिट साइड वेंट्रिकल. दिस इज इप्सिलेटरल वेंट्रिकल. दिस इज लेटरल वेंट्रिकल. दिस इज लेटरल वेंट्रिकल. एज यू नो, देयर आर 2 लेटरल वेंट्रिकल. 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में.
विच आर कम्युनिकेटिंग विद द थर्ड वेंट्रिकल। एक थर्ड वेंट्रिकल होता है जो दोनों लेटरल वेंट्रिकल को फोरामन ऑफ मोनरो से कम्युनिकेट करता है, एंड वन इज फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल कम्युनिकेटेड बाय द एक्विडक्ट। सो देर आर ए 4 वेंट्रिकल इन द ब्रेन। तो these are bilateral lateral ventricle communicating with the foramen of Monro to third ventricle. This is third ventricle, which is again communicating with the fourth ventricle. This is fourth ventricle. There is a aqueduct of Sylvius. So this is the ventricular system of the brain. And what is the flow? Flow is CSF is mainly produced by the choroid plexus of the lateral ventricle and fourth ventricle. So CSF mainly produced at the choroid plexus of lateral ventricle. Then flow is from the lateral ventricle to third ventricle through foramen of Monro. Then third ventricle to fourth ventricle through through aqueduct of Sylvius, and then it through from fourth ventricle it goes to arachnoid granulations or basal cistern for absorption through foramen of Megendie and foramen of Luschka. This is the sequence or flow of the CSF in the brain. CSF, what is CSF? हमने अभी बहुत देर तक CSF की बात करी है। CSF क्या है? This is the cerebrospinal fluid, CSF. This is the specialized extracellular fluid. Why extracellular? Because this is present in ventricular compartment and subarachnoid compartment. So this is totally extracellular fluid produced by the choroid plexus, lateral ventricle and fourth ventricle. Support and protect the brain and spinal cord. How it protect? जैसे हम लोग चल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वी आर मोबाइल, एंड व्हेन वी मूवमेंट आवर हेड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, तो ब्रेन गोज डायरेक्टली टू द बोन एंड इट में इंजर्ड, इसको चोट लग सकती है। तो सीएसएफ क्या करता है? सीएसएफ इज ए शॉक एब्जॉर्बर। ये प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को फ्रॉम द शॉक एंड ट्रॉमा। सो दिस इज द प्रोटेक्शन। CSF is produced by choroid plexus of lateral and mainly fourth ventricle. Normal total volume is 130 to 150 ml. 130 to 150 ml of CSF is present at a time when it may be in a ventricular space, subarachnoid space or spinal canal. 30 to 50 ml, 30 to 50 ml present in ventricle, rest 100 ml in subarachnoid space and spinal canal. CSF produced and absorbed, both are rate are equal, and hydrocephalus appear when there is an imbalance between the production and absorption. So rate are same, production and reabsorbed by the choroid plexus, production by the choroid plexus, absorbed by the arachnoid granulation, rate of 20 ml per hour or 500 ml per day. It is most important that this is the rate per ml per hour. 20 ml per hour produced and 20 ml per hour is reabsorbed by the arachnoid granulation. When there is an imbalance between this, hydrocephalus is occur. This is again which we discuss. This is the lateral ventricle. These are the lateral ventricle. This is the again spinal canal. This is fourth ventricle. This is diamond shape. This is third ventricle. This is aqueduct. This is foramen of Monro. This is corpus callosum, and this is the lateral ventricle. Flow is foramen of Monro to third ventricle to fourth ventricle through aqueduct of Sylvius, and then fourth ventricle to subarachnoid by foramen of Luschka. Two foramen are foramen of Luschka laterally, and one is foramen of Megendie medially. This is known as Luschka. Luschka, Luschka. Luschka means laterally placed.
and Migendi. Migendi means medially place. Medially. Lashka, L for Lashka, laterally. 2 foramen are laterally. Migendi 1 medially. So this is the flow of the CSF through the ventricle. CSF is again absorbed by the arachnoid granulation, and this is the arachnoid granulation. From arachnoid granulation, this is go back to blood vessels or venous sinuses. So produced by the choroid plexus, so production from the blood and again reabsorbed to the blood at the granulation tissue. Sign and symptom associated with hydrocephalus are because of imbalance in the production and absorption. We repeatedly discuss, हम बार बार इस बात में डिस्कस कर रहे हैं कि जब CSF ज्यादा बन रहा है या CSF कम एब्जॉर्ब हो रहा है तो इम्बैलेंस होगा, तो CSF एक्यूमुलेट होगा, CSF एक्यूमुलेट होगा तो वेंट्रिकल डायलेटेड होंगे, ब्रेन में सूजन बढ़ेगी, इस कंडीशन को हाइड्रोसेफलस नाम दिया गया है। अब इसके साइन और सिम्टम आप कैसे पहचानेंगे बच्चों में और बड़ों में, तो वी आर गोइंग फर्स्ट डिस्कस इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मीन्स लेस देन 12 मंथ और 1 ईयर एज। इन्फेंट्स इंक्रीज हेड साइज, इंक्रीज हेड साइज, दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन साइन। इसको माँ भी पहचान सकती है और एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, एज ए डॉक्टर, MBBS इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे की जो सिर की ग्रोथ है वो डिसप्रपोर्शनेट टू बॉडी, बॉडी की अनुपात में सिर की साइज ज्यादा बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 1.25 सेंटीमीटर पर वीक और 2 सेंटीमीटर पर मंथ। दीज आर द क्राइटेरिया कि हर वीक उसके सिर को जब इंच टेप से नापेंगे, अगर 1.25 सेंटीमीटर से ज्यादा या पर मंथ 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ रही है, दैट मीन्स देयर इज ए प्रॉब्लम। तो दिस इज द फर्स्ट। Then bulging fontanelli. What is fontanelli? There are the frontal bone, these are the parietal bone, and these are the occipital bone. Where 2 frontal and 2 parietal bone meet, this is the anterior fontanelli, and where 2 occipital and 2 parietal bone meets, this is the posterior fontanelli. होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो चारों बोन्स सेपरेट होती है। फ्रंटल बोन दिस लाइक सेपरेट होती है, पैराइटल बोन इस तरह से सेपरेट होती है, ऑक्सीपिटल बोन अलग होती है, टेम्पोरल बोन इसके नीचे इस तरह से अलग। तो बोन्स आर सेपरेटेड एंड दे आर फ्यूज्ड। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ये फ्यूज होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज एंटीरियर fontanelli बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। ये फ्यूज होती है एट द 6 मंथ ऑफ एज, 6 महीने की उम्र पे ये फ्यूज हो जाती है। अब अगर बच्चे के अंदर वेंट्रिकल डायलेटेड हो रहे हैं, CSF का प्रोडक्शन या एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है या प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वेंट्रिकल डायलेटेड है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए बोन दूर दूर होना शुरू हो जाती है, वो फ्यूज नहीं होती है। तो आपको जो fontanelli है वो आपको सॉफ्ट और टेंस नजर आती है, वो फूली हुई नजर आती है। तो दिस इज द सेकंड इज बल्जिंग fontanelli। देन प्रोमिनेंट स्कैल्प वेन, जब सिर की साइज बड़ी होगी तो जो उसकी वेन है वो मोर प्रोमिनेंट हो जाती हैं और वो दिखना शुरू हो जाती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है। बच्चे को परसिस्टेंट वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, लगातार उल्टियां होती है, तो देयर इज ए परसिस्टेंट वोमिटिंग। लिथार्जी और इरिटेबिलिटी, वो बिना उसके इरिटेबल रहेगा, विदाउट एनी रीजन इरिटेबल रहेगा। सेटिंग सन साइन, it may be appreciable setting sun sign when eye rotated downwards, in which sclera may be visible above iris. Setting sun sign, the globes are inferiorly rotated and sclera is visible from above the cornea. This is known as setting sun sign. Then may produce seizure and delayed development of child. बच्चे की ग्रोथ मेंटली फिजिकली बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, उसका बौद्धिक और शारीरिक विकास धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। देन मोस्ट कॉमन इज मेक इवान साइन। मेक इवान, व्हाट इज मेक इवान साइन?
When increase in intracranial pressure, the bones of skull bones are thin, पतली हो जाती है, एंड द सूचर बिकम पाल्पेबली सेपरेटेड, और वो बोन जो होती है वो फ्यूज नहीं होती, तो पाल्पेबली वो दूर दूर नजर आती हैं, फ्रंटल पेराइटल बोन में गैप हो जाता है, तो पाल्पेबली सेपरेटेड, एंड प्रोड्यूस द क्रैकपॉट साइन ऑन द परकशन ऑफ द स्कल। और जब स्कल को परकशन करते हैं तो एक क्रैकपॉट साइन, जैसे कि कोई बर्तन टूट जाता है वैसी आवाज आती है, तो इसको बोलते हैं मैक इवान साइन, बिकॉज ऑफ द separation and thinning of the bone. This is the prominent scalp vein, large size of head in proportion to face. This is setting sun sign, inferiorly rotated cornea. Then older children and adults, sign and symptoms, setting sun sign as you discussed, persistent vomiting because of raised intracranial pressure, जब सिर का प्रेशर बढ़ जाता है तो लगातार हेडेक एंड उल्टियां होना शुरू हो जाती है, विजुअल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, विजुअल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ जब सीएसएफ का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है तो ऑप्टिक नर्व की जो शीत होती है उसके अंदर सीएसएफ का माइग्रेशन हो जाता है और पेपिलो एडेमा प्रोड्यूस हो जाता है, तो आंखों की जो नर्व होती है ऑप्टिक नर्व उसमें भी सूजन आना शुरू हो जाती है, तो उसको पेपिलो एडेमा नाम दिया गया है। पेपिलो एडेमा होने से विजन हैम्पर हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सिक्स्थ नर्व की पाल्सी होने से दो दिखना या डिप्लोपिया जिसे बोलते हैं वो दिखना शुरू हो जाता है, लिथार्जी, बच्चा लिथार्जी पोजीशन में आ जाता है, बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं, जब वेंट्रिकल डायलेटेड होते हैं तो फ्रंटल हॉर्न पे प्रेशर आता है तो उसके बिहेवियरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, डिफिकल्टी इन स्कूल वर्क एंड सीजर, एंड अगेन मे बी convulsion. This is the setting sun sign, inferiorly medially rotated cornea, and sclera is visible. Sclera is visible. Diagnosis, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम आपने देख लिए कि बच्चे में कैसे होंगे, बड़े में कैसे होंगे, आपको पूरा डाउट है कि बच्चे को सीएसएफ का प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइड्रोसेफेलस है, तो फिर आप उसको डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे? तो देयर इज नो ब्लड इन्वेस्टिगेशन, देयर इज नो ब्लड इन्वेस्टिगेशन, कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं है जो इसके लिए आपको हेल्प करने वाली है। तो देयर इज नो ब्लड इन्वेस्टिगेशन for diagnosis of hydrocephalus. Imaging, only imaging are the requirement for the diagnosis of hydrocephalus. Number 1, clinical evaluation जो आप देख चुके हैं, sign symptom, then ultrasound. Ultrasound may be helpful in vitro also. जब बच्चा छोटा होता है, फंटेनली उसकी ओपन होती है, तो अल्ट्रासाउंड से भी आप देख सकते हैं कि वेंट्रिकल डायलेटेड है या नहीं है। और जब बच्चा माँ के पेट में होता है, प्रेग्नेंट फीमेल में भी अगर बच्चे की एबनॉर्मल ग्रोथ है तो आप अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा सकते हैं। देन सीटी स्कैन, दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हुई? सीटी स्कैन। वाई? easily available, less time consuming and definitive diagnosis. Then MRI, when you are highly suspected about the pathology which are not related to congenital or not related to simple, just you known about the tumor, मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्लोमास, और अगर दूसरी कोई पैथोलॉजी एसोसिएटेड है हाइड्रोसेफेलस में तो एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। देन एक्सरे प्लेन फिल्म, एक्सरे प्लेन फिल्म आपको क्या दिखाएगी? एक्सरे में आप क्या देखना चाहोगे कि ये हाइड्रोसेफेलस में एक्सरे में ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो व्हाट आर द नंबर 1, सेपरेशन ऑफ सूचर। हम डिस्कस कर चुके हैं कि सूचर सेपरेट हो जाएंगे जैसे जैसे बच्चे का हाइड्रोसेफेलस या सीएसएफ का प्रेशर बढ़ेगा, वो फ्यूज नहीं होंगे। जैसे सजाइटल सूचर है वो फ्यूज नहीं होगा, कोरोनल सूचर है जो फ्रंटल और पेराइटल के बीच में होता है वो फ्यूज नहीं होगा, तो सूचर आर सेपरेटेड। इरोजन ऑफ पोस्टीरियर क्लिनोइड्स,
एंट्री क्लिनोइड प्रोसेस, पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, जो कि सेला टर्सिका के आगे और पीछे होते हैं। तो पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस का इरोजन हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ द बैलूनिंग ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ये प्रेशर करेगा तो इरोजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल अपने को देखने को मिलेगा। इंक्रीज कॉन्वोल्यूशनल मार्किंग, बीटन कॉपर अपीयरेंस आपको दिखने को मिलेगी। ये सब चीजें आपको एक्सरे में दिखेगी। अल्ट्रासाउंड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेंट्रिकल डायलेटेड मिलेंगे आपको इन विट्रो और जब बच्चे की फोंटेनली ओपन हो। देन सीटी एंड एमआरआई। तो इमेजिंग क्राइटेरिया सीटी और एमआरआई में आपको क्या क्या देखना है या क्या क्या डायग्नोस्टिक फीचर आपको सीटी एमआरआई में मिलेंगे। नंबर 1, टेम्पोरल हॉर्न डायलेटेशन मोर देन 2 mm। 2 mm से ज्यादा डायलेटेशन हो टेम्पोरल हॉर्न का, दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। नंबर 2, फ्रंटल हॉर्न इनर डायमीटर इज मोर देन 0.5। ये आपका वो है स्कल है एंड ये आपके वेंट्रिकल हैं दोनों, लेटरल वेंट्रिकल। तो जो फ्रंटल हॉर्न है उनका जो डायमीटर है और वो जो इनर डायमीटर है इसका जो रेशियो है वो 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। बेलूनिंग ऑफ फ्रंटल हॉर्न बेलूनिंग हो जाएंगी, थर्ड वेंट्रिकल का बेलूनिंग दिखेगा आपको। दिस इज द बेलूनिंग ऑफ फ्रंटल हॉर्न एंड लेटरल वेंट्रिकल। पेरीवेंट्रिकुलर ट्रांसलूसेंसी, CSF goes through the ependymal lining to the brain. This is how appreciate in the CT or MRI as a translucency or hypodensity. Frontal horn biparietal diameter is more than 0.3. Thinning and bowing of corpus callosum. This is appreciable in MRI. जब आप सजाइटल इमेज लेंगे तो आपको कॉर्पस कैलोजम का थिनिंग एंड बोविंग दिखेगा। बोविंग मतलब धनुषाकार, धनुष की तरह दिखेगा। मेमिलोपोंटाइल डिस्टेंस जो है वो 11 mm से ज्यादा होनी चाहिए। ये एमआरआई के सजाइटल इमेज में अप्रिशिएबल होगी आपको। एंड ओब्लिट्रेशन ऑफ सल्का इन गायराई, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी फीचर फॉर द रेज आईसीपी। सल्काई गायराई के पैटर्न ओब्लिट्रेट हो जाएंगे। इसका मतलब कि सेरेब्रल एडेमा और मास इफेक्ट आपको उसके अंदर दिखाई दे रहा है। Commissure dilate, these are the picture which are showing, this is the ultrasound film showing the dilated ventricle. These are frontal horn, these are temporal horn, this is the third ventricle, this is ultrasound image. This is MRI coronal image. There is also a lateral ventricle dilatation, third ventricle, temporal horn, these are dilated. And this is the axial image of CT. There is a diameter, this is diameter more than 2 mm temporal horn diameter. Then this is the anterior and posterior recess of third ventricle and increased mammilopontine distance. These are the anterior recess, this is the posterior recess, and this is mammilopontine distance. What is mammilopontine? There is a mammillary body. There is a mammillary body and there is a pons. Between this is the distance of mammilopontine distance. It is more than 11 mm is diagnostic criteria for hydrocephalus. This is also a sagittal image of MRI. ये MRI की एक sagittal image। MRI की 3 इमेज आप ले सकते हैं, एक्सियल इमेज, sagittal इमेज एंड कोरोनल इमेज। एक्सियल इमेज मतलब जो एक्सिस के अकॉर्डिंगली आप ली जाए, कोरोनल मतलब कोरोनल सूचर के अकॉर्डिंग जो इमेज ली जाए, और सजाइटल जो सजाइटल सूचर के साथ में ली जाए। तो दिस इज द सजाइटल इमेज एंड हियर यू अप्रिशिएट द कॉर्पस कैलोजम इज बोविंग एंड थिनिंग ऑफ कॉर्पस कैलोजम। दिस इज आल्सो ए डायग्नोस्टिक criteria. Then transependymal oozing and translucency, periventricular translucency. These are the MRI axial image and this is showing hypointense transventricular translucency. These are the hyperintense picture. So this is the translucency. क्लासिफिकेशन नाउ हम अब हाइड्रोसेफेलस को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म
अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट कि ये हुआ क्यों है, हाइड्रोसेफलस के रीजन क्या क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली रीजन हम क्लासिफाई कर रहे हैं। नंबर 1 ओवर प्रोडक्शन, जो हमने बात करी, सीएसएफ का ज़्यादा बनना, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो सेम है या वो डिकम्पेंसेटरी फेज में चला गया है, वेंट्रिकल में डायलेटेड हो रहा है, इसका मतलब कि हाइड्रोसेफलस ओवर प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। नंबर 2 ऑब्स्ट्रक्शन टू सीएसएफ, और दिस इज द obstruction, it may be a intraventricular or extraventricular, both are obstructive. This is the most common cause, this is the most common cause for the hydrocephalus. Number 3 decreased absorption of CSF by arachnoid, this is the extraventricular type and this is the mostly communicating type. So 3 types of hydrocephalus according to the etiology. Number 1 is overproduction, नंबर 2 ऑब्स्ट्रक्शन एंड नंबर 3 इज लेस और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइट कि ऑब्स्ट्रक्शन किस जगह पे है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस को हम अगेन क्लासिफाई कर रहे हैं कहां पे है। नंबर 1 मोनोवेंट्रिकुलर, मोनोवेंट्रिकुलर मतलब कि केवल और केवल सिंगल वेंट्रिकल डायलेटेड है। मोस्ट कॉमनली foramen of Monro obstruction, so lateral ventricle is dilated, that means this is a monoventricular hydrocephalus. Then biventricular, biventricular means both lateral ventricle are dilated because of either cyst or wave of the third ventricle and which are obstructing bilaterally foramen of Monro. Then triventricular, triventricular means both lateral ventricle and third ventricle are dilated, तीनों ventricle dilated हैं। तो इसका मतलब obstruction कहाँ पे है? Between the third and fourth ventricle or at the level of aqueduct. This is the triventricular. And panventricular means all fourth ventricle are dilated. This is the most common in communicating hydrocephalus. Then classification according to etiology, we again classified hydrocephalus according to etiology also. Etiology number 1 congenital, congenital as you know congenitally maybe of Dandy-Walker, AV malformation and Arnold-Chiari malformation, vein of Galen malformation, these are region of the obstructive and communicating hydrocephalus, and maybe a congenital obstructive hydrocephalus at the level of aqueduct. Then post-traumatic, when patient come to you after trauma, हेड इंजरी हो गई, हेड इंजरी के बाद आपके पास आता है, उसको सब अरेक्नोइड हेमरेज हुआ है, सब अरेक्नोइड हेमरेज के बाद में जो आरबीसीज हैं वो अरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस में जाकर के उनको ब्लॉक कर देती हैं, तो सीएसएफ का प्रेशर बढ़ता है, वेंट्रिकल डायलेटेड हो जाते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म इन पोस्ट ट्रॉमेटिक हाइड्रोसेफलस। Then post inflammatory as you well aware about the meningitis, in meningitis these plaques or infection also causes obstruction to granulation tissue, so there is a less absorption. Then neoplastic where in the colloid cyst or any tumor which is obstruct the CSF flow, maybe at the level of third ventricle, at the level of aqueduct, at the level of fourth ventricle, it causes obstructive hydrocephalus, तो neoplastic etiology भी hydrocephalus कर सकती है। Then degenerative, why degenerative? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन की क्षमता हाइड्रोसेफलस को एब्जॉर्ब करने की कम होती जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे डिजेनरेटिव ऑर्डर आते जाते हैं, एक नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस आफ्टर द एज ऑफ 60 और 65 हमें देखने को मिलता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, व्हाट आर द रीजन? दीज आर द कोरोइड प्लेक्सस, दिस इज द एक्सियल इमेज एंड there is a large aggregation of choroid ponds. Infancy में large amount of CSF atria at the lateral ventricle are the most common of location. तो choroid plexus papillomas are the most common reason for overproduction of the CSF and this is the number 1 reason in the overproduction category. Then hydrocephalus secondary to intraventricular obstruction. अब हम बात करेंगे obstruction के बारे में। overproduction ने देख लिया, अब हम ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करेंगे। तो ऑब्स्ट्रक्शन में मैकेनिज्म क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्शन टू सीएसएफ फ्लो विद इन द वेंट्रिकुलर,
या तो वेंट्रिकल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, कॉमन एट द नेरो पॉइंट जैसे कि फोरामेन ऑफ मोनरो या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। किस किस चीज से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है? मे बी ट्यूमर, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट, फोरामिनल ग्लायोसिस हो, स्टेनोसिस हो, कंजेनाइटल या आफ्टर इन्फ्लेमेशन और आफ्टर सर्जरी। देन एक्विडक्टल स्टेनोसिस वे मे बी कंजेनाइटल। देन कंजेनाइटल एनोमली, चियारी मालफॉर्मेशन, डैंडी-वाकर मालफॉर्मेशन। देन नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस की बात करेंगे। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस मींस ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस। तो ऑब्स्ट्रक्शन कहां होगा? लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन कहां है? फोरामन ऑफ मोनरो। मे बी ए स्टेनोसिस, ग्लायोसिस, ट्यूमर जस्ट लाइक ए कोलोइड सिस्ट। So there is a dilatation of bilaterally frontal horn, occipital horn, this is temporal horn, biventricular obstruction कहाँ है? थर्ड वेंट्रिकल में है। Then foramen of Monro, colloid cyst or maybe tumor obstruct the third ventricle and lateral ventricle. This is again the picture of obstruction at the foramen of Monro. Then this is picture showing the obstruction at the aqueduct. So there is a dilatation of lateral and third ventricle also. This is fourth ventricle. This is fourth, and obstruction is here. Obstruction is, this is the obstruction. So there is a obstruction at the aqueduct of Sylvius level. This is the triventricular hydrocephalus. This is also again aqueduct of Sylvius obstructed by the tumor. There is a tumor, posterior third ventricular tumor. Again picture showing obstruction because of the, this is the CP angle epidermoid. This is epidermoid. This is diffusion weighted film. This is epidermoid CP angle obstruct the aqueduct of Sylvius, causing obstruction and causing there is a dilatation of temporal horn, frontal horn, third ventricle, and this is hyper intense in T2. This is epidermoid. Then again showing the picture, there is a mass. This is CP angle schwannoma causing obstruction at the aqueduct of Sylvius. Then congenital malformation. Congenital malformation, Chiari. Chiari, what are the Chiari? Arnold Chiari malformation. This is the most common cause of the congenital hydrocephalus. Chiari 1, Chiari 2, Chiari 3 and Chiari 4. There are 4 type of Chiari malformation. Number 1, Arnold Chiari malformation. Chiari first, there is not associated with any type of meningomyelocele or encephalocele. So this is a Chiari malformation, and only there is a herniation of the cerebellar tonsillar herniation or herniation of cerebellum in foramen of magnum, causing obstruction at the level of fourth ventricle. Then Chiari second, obstruction at the foramen magnum, herniation of cerebellar tonsillar herniation with meningomyelocele at the lumbar region. And Chiari third, when this is associated with the occipital encephalocele and dilatation of the lateral or third ventricle. Chiari third, then Dandy-Walker, there is a hypoplasia of the post or large posterior fossa cyst causing obstruction, hypoplasia of cerebellar vermis, and short or small capacity of posterior fossa. Then communicating hydrocephalus, हमने बात कर ली अब तक प्रोडक्शन इंक्रीज होने में कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा की, जिसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ और एब्जॉर्प्शन उसका सेम रेट पे था, ओवर प्रोडक्शन ज्यादा था, सीएसएफ एक्यूमुलेट हो रहा था। उसके बाद हमने बात करी ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस इंट्रावेंट्रिकुलर, तो फोरामेन ऑफ मोनरो में हो सकता है, थर्ड वेंट्रिकल में हो सकता है और एट द फोर्थ वेंट्रिकल के बाद भी हो सकता है। ये ऑब्स्ट्रक्टिंग हाइड्रोसेफलस जो सीएसएफ का प्रेशर बढ़ा करके साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा था। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस सेकेंडरी टू एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन।
यहाँ भी ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑब्स्ट्रक्शन तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कहाँ पे है, एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर, यहाँ एट द लेवल ऑफ अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन, वहां उसका एब्जॉर्प्शन होने को वो रोक रहा है, तो वो एप्रिशिएट नहीं होगा आपको उसमें कि ऑब्स्ट्रक्शन है। मैकेनिज्म क्या होगी, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ एट द लेवल ऑफ अरेक्नोइड विलाई, यहाँ पे सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ, या तो सब अरेक्नोइड एंड इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग, जैसे हमने बात करी है अभी, सब अरेक्नोइड हेमरेज में पोस्ट ट्रॉमेटिक या इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हाइपरटेंसिव ब्लीड, वो ब्लीड जो जाकर के वहां पे अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन को ब्लॉक कर देगा, सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देगा। इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी जैसे हमने बात करी, मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन कोज, टीबी मेनिंजाइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन रीजन है हमारे रीजन में। देन ट्यूमर सीडिंग, ट्यूमरल सीडिंग मेडुलोब्लास्टोमा है, एपेंडायोमा है, आपने ट्यूमर ऑपरेट किया, वो ट्यूमर उसके स्पिलेज होकर सीएसएफ के साथ में अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन को ब्लॉक कर रहा है, उसके रिजल्टिंग इन उसके जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है और प्रोडक्शन सेम रेट में हो रहा है, तो होगा क्या, उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा और सीएसएफ एक्यूमुलेट होता जाएगा। देन विनस हाइपरटेंशन, विनस हाइपरटेंशन जस्ट लाइक थ्रोम्बस हो जाता है, सजाइटल साइनस थ्रोम्बोसिस, ट्रांसवर्स साइनस थ्रोम्बोसिस, तो बेक प्रेशर होगा साइनस में, बेक प्रेशर होने से क्या होगा, उसकी जो एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी है सीएसएफ की वो कम हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन कम होगा बेक प्रेशर से, तो वापस उसका सीएसएफ का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा। अब ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, ट्रीटमेंट हमने देख लिया क्या साइन सिम्टम होते हैं, हाइड्रोसेप्लस क्या होता है, उसके डायग्नोसिस हम कैसे करना है, क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके। अब ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है कि परसिस्टेंट कंप्रेशन होगा ब्रेन में है लगातार, तो वो क्या करेगा, या तो ब्रेन में ग्लायोसिस करेगा, या उसके कोर्टिकल फाइबर को डिस्टर्ब करेगा, या न्यूरॉन्स को डैमेज कर देगा, एक जोन्स की टीयरिंग करेगा को लॉन्गिट्यूडनल फाइबर के इंटरनल कैप्सूल के साथ में, और माइलिन का डिस्ट्रक्शन, अल्टीमेटली वो ब्रेन को डैमेज करेगा। ब्रेन को डैमेज करेगा क्यों, सीएसएफ बढ़ रहा है, आपकी बोन फिक्स है, तो अब कंप्रोमाइजिंग कंडीशन में कौन है, स्कल फिक्स है, सीएसएफ वेंट्रिकल डायलेटेड है, तो कंप्रोमाइजिंग कंडीशन में ब्रेन है, तो ब्रेन को कंप्रेस करेगा, ब्रेन में एडेमा आएगा, एडेमा आने से क्या होगा, ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है, डैमेज होगा तो उसके फीचर्स अल्टीमेटली आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी। ट्रीटमेंट मॉडलिटी, देयर इज नो चॉइस फॉर कंजर्वेटिव, इसमें कंजर्वेटिव की कोई चॉइस नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं कंजर्वेटिव अप्रोच करूं तो इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। सम टाइम यू विल गो फॉर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में क्या दे सकते हैं अपन, मैनिटोल दे सकते हैं, जब आपको सर्जरी प्लान करनी हो और आईसीपी उसका रेज हो तो आप टेम्परेरी रूप में मैनिटोल दे सकते हैं। नंबर 2, आप एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं, एसिटाजोलामाइड टैबलेट होती है, एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं। एसिटाजोलामाइड क्या करती है, एसिटाजोलामाइड सीएसएफ का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देती है, प्रोडक्शन कम होगा। ये कब बेनिफिशियल एसिटाजोलामाइड, जब डीजनरेटिव आपको कंडीशन और नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस हो, ओल्ड एज में आपको देखने को मिले, या इस तरह की कोई हो कि आपको एक जिसमें आपको एक्यूट प्रेशर चेंजेस नहीं आ रहे हों, तो आप मैनिटोल दे सकते हैं, एस्टाजोलामाइड दे सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो कंजर्वेटिव रोल। देन सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर क्या क्या कर सकते हैं, नंबर 1, अगर कोई ट्यूमर है, कोई ब्लड क्लॉट है जो ऑब्स्ट्रक्शन उसमें कर रहा है इंट्रावेंट्रिकुलर, तो उसको रिमूव करेंगे, ब्लड क्लॉट को निकाल देंगे, ट्यूमर को एक्सरसाइज कर देंगे, तो उसका सीएसएफ का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो हट जाएगा। सीएसएफ का ऑब्स्ट्रक्शन जब खत्म हो जाएगा तो आपकी जो पैथोलॉजी अगर खत्म हो गई तो आपका हाइड्रोसेप्लस रिजोल्व हो जाएगा, तो आप सबसे पहले आप उसकी पैथोलॉजी को रिमूव करने की कोशिश करें। नंबर 2, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि टेक्निक्स ऑफ थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी वो प्रोसीजर है जो एंडोस्कोप की सहायता से थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर में हम आर्टिफिशियल एक ओपनिंग बना देते हैं। A artificial opening created at the floor of third ventricle with the help of endoscope to bypass the CSF obstruction, हम CSF का जो obstruction है उसको bypass कर देते हैं और CSF थर्ड वेंट्रिकल से सीधा बेजल सिस्टर्न में जाकर के सब अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी आपको इंसर्ट करने की आवश्यकता भी नहीं होती है।
देन सेप्टल फेनिस्ट्रेशन, सेप्टल फेनिस्ट्रेशन अगर आपको लगता है कि फोरामन मोनरो पे कोई सेप्टा है, कोई वेब है, कोई ग्लायोटिक, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप एंडोस्कोपिकली उनको फेनिस्ट्रेट कर सकते हैं। देन सिस्ट फेनिस्ट्रेशन, अगर एनी कोई अरेक्नोइड सिस्ट है या कोई आपके कोलोइड सिस्ट है, इस तरह की कोई सिस्ट है जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है छोटी, तो आप एंडोस्कोप की सहायता से उसको निकाल भी सकते हैं। एंड देन मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर इज शंट इंसर्जन, सबसे कॉमनली जो डन किया जाने वाला प्रोसीजर है वो है शंट। शंट क्या होता है? ट्रेन में आपने देखा होगा दो डिब्बों को जोड़ना, आपस में शंटिंग, शंटिंग दो चीजों को जोड़ना, दिस इज द शंटिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शंट में शंट को करेंगे हम कि ब्रेन का जो सीएसएफ है उसको बॉडी के दूसरे पार्ट से कम्युनिकेट कर देंगे, उसको शंट कर देंगे ताकि वो बाईपास हो जाए। अगर सीएसएफ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो किसी और ऑर्गन में उसको सीएसएफ को एब्जॉर्ब होने के लिए डाइवर्ट कर देंगे। देन इंटरवेंशन क्या क्या अभी आपने जैसे बात करी है, अगर इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो 50 to 60% जो बच्चे हैं वो कॉम्प्लिकेशन से एक्सपायर हो जाते हैं या उस सीजर में या वेगेटेटिव स्टेट में रहते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट दे देते हैं समय पे तो 40% तो नॉर्मल इंटेलिजेंस को कवर कर लेते हैं और 70% बच्चे इन्फेंसी के बाद भी जिंदा रहते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट में टाइप ऑफ शंट, नंबर 1 वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, वीपी शंट, दिस इज मोस्ट कॉमनली डन बाय द न्यूरोसर्जन। इसमें क्या करेंगे हम, ब्रेन के अंदर बरोल करेंगे ऑक्सीपिटल में, कोकर पॉइंट यहाँ अपने पेराइटल ऑक्सीपिटल रीजन पे बरोल करके उसमें एक वेंट्रिकुलर एंड जो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर प्लेस कर देंगे, वेंट्रिकल एंड को उसको कनेक्ट करके एक चेंबर से कनेक्ट कर देंगे, उस चेंबर से एक ट्यूब कनेक्ट कर करके और जो बच्चा है उसके एब्डोमन में उसको उतार देते हैं। तो ये सब लेटरल वेंट्रिकल से एब्डोमन में इंट्रापेरिटोनियली ट्यूबिंग के द्वारा वहां से डाइवर्ट होकर पेरिटोनियम में आ जाता है और पेरिटोनियम में वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ये मोस्ट कॉमनली किया जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली परफॉर्मिंग सर्जरी फॉर द हाइड्रोसेफलस वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। देन वेंट्रिकुलोएट्रियल शंट, वेंट्रिकुलोएट्रियल शंट इसमें क्या करेंगे, जो ब्रेन में बरहोल किया और उसके जो वेंट्रिकल का एंड है उसको जुगुलर वेन में डाल देंगे ताकि वो वहां से सीधा जो हार्ट है उसमें जुगुलर वेन में जाकर के वो हार्ट में चला जाएगा और ब्लड में सीधा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये क्यों करेंगे, कब करेंगे? अगर बच्चे के पेरिटोनाइटिस है, एसाइटिस है या उसकी पेरिटोनियम में इन्फेक्शन की वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो वेंट्रिकुलोएट्रियल शंट इज द चॉइस फॉर द अल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉर वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। पर इसके भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। क्या हो सकते हैं? एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, उसमें पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, हेमेटोमा हो सकता है, जुगुलर वेन में थ्रोम्बोसिस हो सकता है, तो आईसीपी अगेन रेज हो सकता है। देन वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट ये बहुत कम किया जाता है, लेकिन ये तब जब आपका लगता है कि पेरिकार्डाइटिस है और साथ में पेरिटोनाइटिस है तो आप उसको प्लूरा में भी डाल सकते हैं, पर यहाँ चांस ऑफ प्लूरेसी एंड चांस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन आर मोर। एंड अगेन लंबर पेरिटोनियल शंट, लंबर पेरिटोनियल शंट में क्या करेंगे, लंबर पेरिटोनियल शंट के अंदर एब्डोमेन का पार्ट तो वही रहेगा और पीछे जो अपने स्पाइन है, पीछे जो स्पाइन है, स्पाइन से ट्यूबिंग सीधा पेरिटोनियम में डाइवर्ट कर देंगे। ये कब बेनिफिशियल होगा? जब कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस में देयर इज नो रोल फॉर द लंबर पेरिटोनियल शंट। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी हम इस पे बात कर चुके हैं अभी कि आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएटेड एट द फोल्डर ऑफ थर्ड ventricle with the help of endoscope to bypass the CSF. So this is the investigation of this is the procedure of choice in obstructive hydrocephalus. Then complication of shunt, shunt complication क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया माल फंक्शन हो सकता है,
ड्यू टू ओक्लूजन ऑफ वेंट्रिकुलर एंड कोरोइड प्लेक्सस में जाकर के उसमें कोरोइड प्लेक्सस वेंट्रिकुलर एंड में अगर सील कर देता है तो माल फंक्शन उसका वहां से ड्रेनेज बंद हो जाता है। कैथेटर का डिसकनेक्शन हो सकता है, आपका चैम्बर के पहले और चैम्बर के बाद में डिसकनेक्शन हो सकता है, तो शंट माल कंप्रोमाइजिंग कंडीशन में आ जाता है। फिर वेंट्रिकुलाइटिस हो सकता है, शंट इन्फेक्शन हो गया, वेंट्रिकुलाइटिस हो गया। अगर उसमें पहले से इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है बैक्टीरियल या ट्यूबरकुलर, तो वेंट्रिकुलाइटिस हो जाएगा। सब ड्यूरल हेमेटोमा, अगर ज़्यादा ड्रेनेज हो जाता है, सडन आईसीपी कम हो जाता है, तो सब ड्यूरल हाइग्रोमा हेमेटोमा मिल सकते हैं आपको। पोस्ट शंट ड्यूरल फाइब्रोसिस हो जाता है ड्यूरा में। स्लिट वेंट्रिकल सिंड्रोम, वेंट्रिकल्स छोटे छोटे हो जाते हैं और वो बिल्कुल जिस रेट से उसमें आप प्रेस बन रहा है आपका सीएसएफ, उसी रेट से निकल रहा है और वेंट्रिकल की प्लास्टिसिटी खत्म हो जाती है। और एब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशन जैसे एसाइटिस है, सीएसएफ का एब्जॉर्ब नहीं होना, वहाँ बन जाना, सूडोसिस्ट, जो सीएसएफ है उसके आसपास एक सूडो वाल बन जाती है और वो एक सिस्ट फॉर्मेशन का रूप ले लेती है। परफोरेशन हो सकता है आपका गट का, और रेयरली आप शंट को थ्रू एनएसबी निकलता हुआ देख लेते हैं। once a while you are observing this. Thank you for your kind